sound comma. So now I am showing you a screen of the nobelprize.org. Okay, nobelprize.org, and in which we are seeing the name of Dr. Robert G. Edwards, who was awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine in the year 2010. Okay, so he was awarded the Nobel Prize for the development of what? In vitro fertilization. Okay, so in vitro fertilization के लिए उनको Nobel Prize से सम्मानित किया गया. Understand? He is Dr. Robert G. Edwards. Saw the photo? Yes, sir. Yes, चलिए. So where were we? हमारा कहाँ तक चला गया था देख लिया जाए. तो ART हमारा खत्म हो गया. हाँ. What was the last we were doing? Sir, ये genital warts. Oh, STIs. We are discussing the sexually STIs. transmitted infections. Now, in that case, you can track these things. इसमें आप देखिए, so आपका जो different types of infections है, तो please write the माने here you will see. I'm increasing the size. Okay, so now here you are seeing chlamydia trachomatis. देखे नहीं? So in chlamydia trachomatis, the incidence you see, the incidence is how much? It is a common infection. 3 million cases occur in the US every year. Okay, उसके बाद gonorrhea, तो over 500,000 cases in the US every year. Okay, so this is about gonorrhea. Fine. Now symptom gonorrhea sometimes referred to as the clap. Okay. Now इसीलिए इसमें तापरे next is PID or pelvic inflammatory diseases. Pelvic inflammatory disease. Yes. तो इसमें आपका nearly 1 million cases in US every year. So only occurring in US. Don't tell only occurring. ये फोटो में US का डाटा है. It is occurring everywhere, but data is not. I don't have that data. तो ये जो डाटा अवेलेबल है ये US का डाटा है. तो US is a civilized country. अगर 1 million है तो इंडिया में और होगा. इसमें दुख करने का क्या जरूरत है? चलिए. सर कल जो आप STIs पढ़ा रहे थे, जो नोट्स दिए हैं उसका सिर्फ हम अपने नोट में क्या लिखेंगे? सिर्फ कॉजिंग एजेंट. टेक्निक देखो, आप कॉपी में सारा लिख लेंगे, बट याद रखेंगे ओनली पॉजिटिव एजेंट. ओके सर. ताड़ू बेसिक किसी ऐसे नहीं. Now उसके बाद AIDS, around 42 million people are living with HIV in US and close to 1 million people with AIDS are diagnosed every year. Okay, sorry, worldwide में 42 million people हैं, US में 1 million. तापर genital warts we were discussing, human papilloma virus. Okay, again this is the concept. ना इसमें एक चीज हम लोग देखेंगे. So I have added another video for you. That is molecular biology introductions. Okay, so you can go and check it out in the website. So actually there is a Nobel Prize for okay. So again, there's a Nobel Prize I told you na for human papilloma virus. Okay, so that is what I will show you directly from the net. Okay, इतना late तुम लोग join करते हो ना. So see, he is Zur Hassan. Okay, Zur Hassan.
So in an okay, Nobel Prize winner Harald zur Hausen talked about cancer causing viruses, and his topic was human papilloma virus. Okay, so Harald zur Hausen has demonstrated a connection between human papilloma virus and cervical cancer. So that is the story about him. We will go to nobelprize.org. क्या हो गया, चिल्ला कह रहे हो? So now, so this is the press release actually. So these are the Nobel laureates, okay, in medicine and physiology. हाँ बोलो. स्क्रीन फ्रीज हो चुका है वो जेनाइटल वॉट्स वाला पेज में. ऐसा आपने क्यों किया है? So now you see this. So this is the Nobel Prize in Physiology and Medicine 2008. इसमें around 3 people were awarded the Nobel Prize. Harald zur Hausen, he was awarded for human papillomavirus. Francois Barsinowski and Luc Montagnier. So Luc Montagnier was awarded Nobel Prize for the discovery of HIV. So the Nobel Prize in MNP was divided one half, means आधा हिस्सा Harald zur Hausen for his discovery of human papilloma viruses causing cervical cancer, and other half jointly to Francois Barsinowski and Luc Montagnier for the discovery of HIV. Understood? So this is the concept. तो इसलिए आपको याद होना चाहिए. So is it clear? So we'll take a snap for you to remember. Okay. So now ऐसा वाला snap लेंगे ना. So this is the Nobel Prize in Medicine and Physiology 2008, and it was awarded to these people, out of which Luc Montagnier is a Nobel laureate. And you know, Luc Montagnier, he only told that actually coronavirus cannot be a natural virus. Understood? तो देख रहे हो, तो मैंने आपको नोबेल प्राइज का भी दर्शन कराया, एक और नोबेल प्राइज का दर्शन कराया, दैट इज डॉक्टर पैट्रिक स्टेप. तो वो आप पढ़े नहीं हो, फिर दोबारा हम इस साइट पे वापस आएंगे. उनको 2010 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है. क्लियर? सो जेनाइटल वार्ट्स का जो डिस्कवरी है, तो वही पैथोजन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर को भी कॉज करता है, इसलिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. Hepatitis B is also a sexually transmitted infection. Okay, so it is transmitted blood and other body fluids. Newborns can get from mothers. Okay. तापरे ये आपका ओरल हर्पीस है ना. ये आप देख लीजिए, ये सब आप लिख लीजिए. फेलियर रेट्स, ये आपका तो टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे. अरे ये तो सॉरी जाइए. तो आप इसमें लिखिए सर्वाइकल कैप्स, फेलियर रेट इज 18%. ओके, ये यूएस का ही डाटा है, इंडिया का डाटा नहीं. डायाफ्राम 18%, फीमेल कॉन्डम 21%, मेल कॉन्डम 12%, स्पर्मिसाइड्स 21%, एब्स्टिनेंस 20%, टेम्पररी एब्स्टिनेंस है ये. इंट्रायूट्राइन डिवाइस लेस देन 2%. देख रहे हो? तो आउट ऑफ देम विच इज द बेस्ट? IUD. परमानेंट एब्स्टिनेंस इज 0%. अब जब मिलना ही नहीं है तो एसटीडी कैसे होगा? अंडरस्टैंड? तापरे ये सबसे बेस्ट है सर. कंबाइंड पिल्स ये 3.0 है %. मिनी पिल्स इट इज 13.2%. एंड डिपो-प्रोवेरा, ये जो आपका इंजेक्टेबल वैक्सीन है, दिस इज 0.3%. ये मैंने आपका वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये आप वेबसाइट में जाके भी इस स्क्रीन को पॉज करके दोबारा लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो उसके बाद नॉरप्लांट, तो नॉरप्लांट जो है अराउंड 0.09%.
देखो, this is much better than your IUDs. 0.09%. Do you imagine? It is so beautiful. तापरे फीमेल स्टेरिलाइजेशन 1%, माने इससे भी कम है इन आवर प्लांट, एंड मेल स्टेरिलाइजेशन लेस देन 1%. So ये सब फेलियर रेट्स हैं. Understand? So that's all about your birth control devices. So we will not waste time. We'll jump into the next topic because ये सब आज आएगा तुम्हारा एग्जाम में, तो इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए. So the next topic we have discussed is सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा. how? तो assisted reproductive technologies or we call it ARTs. आपको मैंने बोला था ना, पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट आने वाला है आपका, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, है कि नहीं? सर काली आपण मना करथिले आसीवनी रिप्रोडक्टिव तो नहीं आएगा. वेरी सिंपल. ओके, चलो. सो दिस इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ना. इसको डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा इसका रीजन. तो व्हाई ARTs? ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ARTs. ओके, तो इसमें जो मेन कंसेप्ट है तो इनफर्टिलिटी. ओके, तो ARTs हम क्यों यूज करते हैं? ड्यू टू इनफर्टिलिटी, और उसको हम ऑल्सो कहते हैं रिलेटिव स्टेरिलिटी. अंडरस्टैंड? तो नाउ, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये इनफर्टिलिटी क्या होता है. ओके, so today we will discuss what is infertility and how we can cure it with the help of ARTs. कोई शक? एक्चुअली आपको तो मालूम है कि जो मैं नहीं बोलता हूँ वो उसमें से मैं डालता हूँ कि नहीं? यस सर. तो आप जानबूझ के बेकार क्वेश्चन पूछते क्यों हो मेरे से? मेरा दिल को चोट पहुंचता है. वैसे मैंने डाला नहीं है, तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है. सर ठीक है, लास्ट 15 to 20 मिनट्स है क्वेश्चन डिस्कशन कर दो. नो, योर टाइम. आपको मैंने बोला ना कि जब आपको मैं समय देता हूं तब आपको करना चाहिए. अब जिंदगी भर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सिलेबस कब खत्म होगा? चलिए, तो इसीलिए वो आप सब खुद कर लेंगे. ऑलरेडी ऑल क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड. फिर क्या क्वेश्चन डिस्कस करना? चलिए. Now infertility is the failure to conceive even after 1 to 2 years of regular unprotected intercourse. Means एक कपल जो है वो रेगुलरली इंटरकोर्स कर रहा है बट फिर भी उनका बच्चा नहीं हो रहा है. ओके, उसको हम लोग छोटा सा अभी साइक्लोन इज ऑल्सो कमिंग. पता चला कि नहीं आपको? पूरी इफेक्ट हो सकता है. हाँ सर. पूरी में मार होगा. गत्ती उड़ी जो. गौती को उड़ाने वाला साइक्लोन पैदा नहीं हुआ. Infertility is the failure to conceive even after 1 to 2 years of regular unprotected intercourse. समझ रहे हो? जैसे कपल अपना नॉर्मली इंटरकोर्स चल रहा है बट फिर भी कभी भी बच्चा नहीं हुआ, तो इस केस में हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं. दिस टर्म is not synonym of sterility, which means
complete inability to produce offspring. ओके, तो स्टेरिलिटी का मतलब क्या है? कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? द इनफर्टिलिटी कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज रिलेटिव स्टेरिलिटी, है कि नहीं? तो उसको हम रिलेटिव स्टेरिलिटी कह सकते हैं, ये ठीक हो सकता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी मतलब आप कभी भी मां नहीं बने थे, एंड सेकेंडरी पहले बने अब नहीं बन रहे हैं। ठीक है सी, तो इसलिए प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज द इनफर्टिलिटी फाउंड इन पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव्ड एट ऑल। उसके बाद सेकेंडरी फर्टिलिटी okay is found in patients who had previously conceived, okay, but no more, but now they are unable to conceive, okay, later, but they are unable to conceive later, है कि नहीं? तो इसलिए एक्चुअली क्या है कि आप लोग कोशिश, मैंने पहले बच्चा था, फिर हम लोगों ने क्या किया? स्पेसिंग किया। ओके, कि चलो 2-4 साल बाद 5 साल बाद एक बच्चा करेंगे। तो अब जब कोशिश कर रहे हो बच्चा नहीं हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ओके, बट दे आर अनेबल टू कंसीव लेटर। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नाउ इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। इंडिया में क्या है? हम सारा का सारा दोष लड़कियों में मर देते हैं, लड़कियों पे डाल दो। बट इन केस ऑफ योर कॉजेस एक्चुअली बोथ मेल एंड फीमेल में होने का चांसेस है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। ठीक है, तो इसलिए पहला हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज इनफर्टिलिटी इन मेल्स। फाइन, तो infertility in males may be due to, okay, तो इसमें सबसे पहला कारण है semen of fertile male has, या एक बार पढ़ लीजिए, ejaculate of a fertile male has 3 to 4 ml of 3 to per ml. Ejaculate of a fertile male has 3 to 4 ml semen. Okay, ejaculate of a fertile male has 3 to 4 ml semen per ejaculate. Okay, with a sperm count of over 200 million, mostly. Okay, तो मोस्टली मोटाइल स्पर्म्स। सिर्फ आपका नंबर ज्यादा होना नहीं चाहिए, वो फंक्शनल भी होना चाहिए। मोस्टली मोटाइल, हैविंग प्रॉपर फ्रुक्टोज कंटेंट, फ्लूइडिटी, ओके, होना चाहिए। तो इजैकुलेट ऑफ ए फर्टाइल मेल हैज दिस मोस्टली fertility, comma, which is deposited high in the vagina. Okay, high in the vagina क्यों? नहीं तो आपका लीक आउट कर जाएगा। अगर आप बाहर इजैकुलेट करते हो तो वो वजाइना से सारा बह जाएगा एंड कोई भी स्पर्म रह नहीं जाएगा, इसलिए बहुत डीप उसको रिलीज करना जरूरी है। Now any defect in sperm count, sperm structure, sperm motility leads to infertility. तो इसमें आपके कारण हैं, तो लो स्पर्म काउंट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, तो अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया। ओके, उसके बाद नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एजूस्पर्मिया, माने उसमें कोई भी स्पर्म नहीं होगा। लो स्पर्म मोटिलिटी इज कॉल्ड एस्थेनोजूस्पर्मिया, whereas अगर स्पर्म स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड टेराटोजूस्पर्मिया। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये सब कारण, हाँ बोलो।
सर जो एंजियोस्पर्म में सर एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स है, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल स्पर्म्स। बेसिकली फंक्शनल, वो नॉन फंक्शनल लेकर अचार डालेंगे। तो ऑलरेडी हम पहले ही लाइन में लिख चुके हैं दैट वो फिट एंड फाइन स्पर्म होना चाहिए। ओके, सपोज यू हैव नॉनसेंस स्पर्म्स, उसका लेके हम क्या करेंगे, पकौड़ा बनाएंगे। सो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए ऑल द स्पर्म शुड बी हेल्दी एंड दे शुड बी एबल टू फर्टिलाइज। ठीक है, तो अदर कारणस में आ जाएंगे आपके क्रिप्टोर्किडिज्म, ओके, और फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। तो ये आपका कारण है एज़ोस्पर्मिया का, हम जानते हैं ये चीज। तापरे एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस है कि नहीं। तो अगर वास डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है एंड वासा एफरेंशिया, और टू बी फ्रैंक द डक्ट सिस्टम है कि नहीं। तो डक्ट सिस्टम में अगर कोई बाधा विघ्न है कहीं भी हो तो स्पर्म आएगा नहीं। तापरे दिस इज लॉस ऑफ सिलियरी फंक्शन and sperm motility due to autosomal recessive disorder called Cartagener syndrome. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है that it results in the deficiency of dynein enzyme, okay, which has ATPase activity and found in the spokes of the A subfiber in the flagellar axone, okay। तो ये आपका जो ए बी फ्लैज, ये सब मैं आपको सेल पढ़ाते समय भी बताया था कि जो आपका फ्लैजेला है उसमें 9+2 अरेंजमेंट आपने बनाया होगा इन द क्लास। आपने ड्राइंग किया है कि नहीं 9+2 अरेंजमेंट? यस सर। तो ये जो 9+2 अरेंजमेंट आपने बनाया है उसमें आप जो रिंग्स बनाए हो ए बी फाइबर, ओके, उस ए बी फाइबर में जो ए फाइबर है उसमें 2 हुक्स होता है, इनर हुक एंड आउटर हुक। तो ये दोनों हुक किस चीज से बना है, डाइनेन, ओके। तो डाइनेन प्रोटीन जो है वो एटीपीएज का एक्टिविटी करता है, मींस इट कैन ब्रेक एटीपी एंड प्रोड्यूस एनर्जी, अंडरस्टैंड। तो अगर आपका ये जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो गया तो इसका मतलब क्या है, डाइनेन नहीं बनेगा। तो डाइनेन नहीं बनने से उस डिजीज को हम लोग कहते हैं कार्टागेनर सिंड्रोम, ओके। कोई शक? नो सर। चलिए, वेरी गुड। सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए अभी जब मैं कोई सर लास्ट को क्या लिखे थे, फाउंड इन द स्पोक्स ऑफ ए सब फाइबर फाउंड इन, अब उसका टेंशन मत लो ना, वो तो मैं भेज ही देता हूँ। प्लस आजकल नहीं सर, मैंने वो मैं पढ़ रहा था तो आजकल आपको अच्छा मैंने लगता आपको इवन आई हैव गिवन यू स्ट्रॉन्ग योर बैकअप इन द वेबसाइट आल्सो यूट्यूब। तो आप वहां भी जाके Yes, देखकर पॉज कर करके आराम से पढ़ सकते हो, अभी नहीं, जब मर्जी चाहे आप उसको पढ़ सकते हो, ओके। Yes, sir. चलिए, सो नाउ इसके बाद इन्फेक्शन अगर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटा गालुआ पिलावटा तमे बुझु ना कि जदि गालुआ हे जीवो मरिबो, ओके। तो व्हाट इज गालुआ इन ओडिया? मम्स। गालुआ इन इंग्लिश। यस। तो इन ओडिया मम्स को हम क्या कहते हैं, गालुआ। गालुआ। यस। तो अगर बचपन में अगर मम्स हो तो चल जाता है, बट अगर एडल्ट में आफ्टर प्यूबर्टी मम्स हो रहा है तो अगर आफ्टर प्यूबर्टी मम्स हो रहा है तो दिस कॉजेस ऑर्काइटिस। व्हाट इज ऑर्काइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। यस। तो ऑर्किस का मतलब होता है टेस्टिस। मैं लिख ही दिया हूँ, गधा कहेंगे, ओके। तो इसीलिए जो ऑर्काइटिस है ना, दिस ऑर्काइटिस, इससे हो जाने से क्या होगा, अब और स्पर्म नहीं बनेगा, ओके।
चलिए, तो इसलिए आपका लो स्पर्म काउंट हो जाएगा या ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है जी। इन्फेक्शन, आप लोग माइक बंद करके खड़खड़ खड़खड़ करिए। ओके, इन्फेक्शंस ऑफ क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस और ट्राइकोमोनास माइकोप्लाज्मा, ओके, ऑल दीज थिंग्स कैन आल्सो कॉज ओलिगोस्पर्मिया। फिर अब अगर आप ज्यादा दारू पीते हैं उससे भी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको मालूम है, दिस इज कॉल्ड XXY सिंड्रोम, है कि नहीं? तो XXY सिंड्रोम जो है उसमें जो मेल्स होते हैं, आपको मैंने कहा है एनी सिंड्रोमिक केसेस देयर इज नो फर्टिलिटी। ओके, एनी सिंड्रोमिक केस देयर इज नो फर्टिलिटी। ओके, उसके बाद जो गोनाडोट्रोपिन डेफिशिएंसी, अगर आपका मूलरू GnRH नहीं बन रहा है, so then also there will be no fertility। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आप लेते हो, रेडिएशंस लेते हो, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हो, एंटी कन्वल्सेंट लेते हो, ये सब स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करता है। अगर आप टाइट पैंट पहनते हो, a lot of people wear टाइट पैंट, जैसे अगर अनिम आयुष्मान का पैंट गौती पहन ले तो क्या होगा? So that will also पैंट reduce। फट जाएगा। नहीं, ऐसे बुरा बात नहीं बोलते, गंदी बात। तो इसीलिए in that case what will happen, there will be also affect spermatogenesis। ठीक है जी। तापरे फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म्स हाई इन द वजाइना, उससे भी आपका प्रॉब्लम होगा। लो फ्रुक्टोज काउंट, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन, हाई विस्कोसिटी, low volume of ejaculate, all of them are reasons for infertility। Understood? तो अब हम लोग चले जाएंगे फीमेल प्रॉब्लम्स में कि क्या सर ये जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उसको आप खाएंगे नहीं बस। ठीक है, सो इसीलिए सर अगर डिप्रेशन हुआ तो खाओ, अगर खाओगे तो फिर ये भी होगा भैया, मैं क्या करूं? इसलिए आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड? सर जो हाई प्रोस्टाग्लैंडिन है, चाहे उसमें सर प्रॉब्लम क्या होता है सर? तो सर हेल्प करता है ना सर यूटेरस को जो फर्टिलाइजेशन के लिए? जी, हर चीज ऑप्टिमल होना जरूरी है। ज्यादा मदद कर दिए और ज्यादा हाथ पैर चला लिए तो सीधा उधर चले जाओगे एब्डोमेन के अंदर, है कि नहीं? तो ज्यादा एक्टिव भी नहीं होना चाहिए ना, वो गंदी बात है। सो लाइक दैट। तो इसीलिए एनीथिंग एक्स्ट्रा इज नॉट गुड। अब मटन अच्छा लग रहा है तो क्या 400 किलो खा लें? तो लाइक दैट। तो इसीलिए हर चीज का एक लिमिट होता है। फाइन। सो नाउ अब हम लोग जो क्या ये इतना दुखी करता है ना ये। So now we will discuss the causes of infertility in females। तो females pink होते हैं इसलिए उनके लिए pink में डिस्कस करेंगे। Now fertile woman is one who regularly ovulates once every cycle। Okay? आपका हर साइकिल में एक अंडा आना चाहिए। Passes the egg down the reproductive tract which develops and जो reproductive tract है वो भी and which develops conditions for smooth passage of sperms and implantation of egg। तो ये ही जो reasons है आप fertile कहलाएंगे। Now the various causes of infertility is as follows। अगर इस रास्ते में कोई बाधा आ रहा है तो infertility होगा। तो इसलिए जैसे पहला कंसेप्ट है एनोव्यूलेशन, मतलब इसमें there is no ovulation या oligo ovulation, कम हो रहा है। These are caused by deficient functioning of hypothalamo-pituitary complex or secondarily by thyroid and adrenal dysfunction। ठीक है, तो जनरली तो ये hypothalamo-pituitary प्रॉब्लम से होता है। FSH, GnRH आएगा तभी आपका FSH चले जाएगा। बट अगर थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, अगर एड्रिनल प्रॉब्लम्स हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद एंड डेफिशिएंट सिक्रीटरी चेंजेस इन एंडोमेट्रियम।
ओके, आप आइदर कॉर्पुलेशियम बन नहीं रहा है, बना है तो प्रोजेस्टेरोन बना नहीं रहा है, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है तो एंडोमेट्रियम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो ये से क्या होगा, इट इनहिबिट्स इम्प्लांटेशन, है ना। तो मेजर रीजन इज डिक्रीज इन एफएसएच एलएच लेवल एंड एलिवेशन ऑफ प्रोलैक्टिन लेवल। तो हम इसको जानते ही हैं, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया, है कि नहीं। तो इसलिए ये सब कारण है। तापरे द ओवम इज नॉट लिबरेटेड बट रिमेन्स ट्रैप्ड इन द फॉलिकल। माने अगर आपका बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन हो जाएगा, वो एंटी एफएसएच एंटी एलएच हो जाता है, तो इसलिए आपका फॉलिकल बन तो जाता है बट ओव्यूलेट नहीं होता, क्योंकि एलएच नहीं आ पाता है। फैलोपियन ट्यूब में फेल टू पिकअप ओवम, अगर ऑस्टियम में ब्लॉकेज है या फिर वो लोकेट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, द एग विल नॉट बी कलेक्टेड बाय द फैलोपियन ट्यूब। अगर कलेक्ट कर लिया, मोटिलिटी प्रॉब्लम है, सिलिया काम नहीं कर रहा, हैव इम्पेयर्ड मोटिलिटी, ओके, इसको भी हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, कार्टागेनल सिंड्रोम, कार्टेजेनस सिंड्रोम। सेम, उसको भी सेम कहेंगे। आपका सिलिया मोटाइल नहीं है, ये फ्लैजेला जो है, सिलिया वो है, केमिकली सेम है स्ट्रक्चरली। तो लॉस ऑफ सिलिया एंड ब्लॉक्ड लुमेन, तो these defects may be caused by infection or endometriosis, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो इसलिए these are all the problems। अभी और कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक यूट्रस अगर खराब हो, ठीक है, अगर there is a problem in the यूट्रस, तो डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम, अगर एंडोमेट्रियम में कोई फर्क है, आज हमने डिस्कस किया था, अगर अबॉर्शन के कारण एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम आया तो भी आपका फर्टिलिटी अफेक्ट होगा, है कि नहीं। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस ढंग से बना नहीं है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स, ओके। उसके बाद फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्रस में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू बन गया है, डिफेक्ट्स इन सर्विक्स, है ना। उसके बाद डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ, तो इसलिए अलग अलग है। तापर एट्रेसिया अगर होगा, ओके, वेजाइनल एट्रेसिया भी होता है, जिस तरह फॉलिकल नष्ट हो जाते हैं, वेजाइना भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो इवन आप एक और चीज लिख सकते हो, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी नहीं होता। इसमें हम लिख सकते हैं इधर 10th पॉइंट में आप टर्नर सिंड्रोम लिख सकते हो। तो टर्नर सिंड्रोम कौन सा याद है? टर्नर सिंड्रोम इज 44 plus X0 X and super female syndrome। कोई भी सिंड्रोम गैमिट्स नहीं बनेगा, दैट इज 44 प्लस पॉली एक्स, तो ये कितना भी एक्स हो सकता है। तो ऑल दिस केसेस में आपका इनफर्टाइल है। तो अब इन केसेस में बच्चा जनरली नहीं होता है। अब हम चेक करेंगे कि कैसे हो। तो सुनो, अगर इनफर्टिलिटी है एंड अल्टीमेटली वो बच्चा नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग इनफर्टिलिटी को रिलेटिव स्टेरिलिटी बोलते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे, अगर कोशिश से बच्चा हो गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं हुआ तो स्टेराइल। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए we call that infertility is relative sterility। हाँ बोलो। So can you say that STI and AIDS also contribute to relative sterility or infertility? हो सकता है STI से आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, बट माने STI ही इनफर्टिलिटी का कारण है ऐसे हम जबरदस्ती बोल नहीं सकते, बट इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, है कि नहीं?
It may be one of the reasons. Now हम लोग कैसे सर मदद सर जो फाइब्रॉइड यूट्रस का सर क्या फाइब्रॉइड यूट्रस मतलब यूट्रस का जो कनेक्टिव टिश्यू डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, मैंने वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा हो गया है, तो उससे क्या होगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिलिटी सब अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? दैट इज कॉल्ड infertility. So that is called assisted reproductive technology. Okay, या ARTs. ठीक है, so what is ART? So ART is the technology that helps in reproduction in infertile couples by retrieving oocytes from the ovary or sperms from testis, bringing about artificial insemination and development of embryo. ठीक है, the different procedures of ART are as follows. तो इसमें अलग अलग तरह का, तो ये मैं आपको जब पढ़ा रहा था उधर ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसलिए ये आपको समझ में आने लगेगा। एक्चुअली इसको अलग से पढ़ोगे तो डाउट आता है, बट साथ साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसमें अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं हमारे। Like IVF-ET. So what is IVF-ET? In vitro fertilization